Drive regularly. You drive regularly, sir, right? So, what do you know about the traffic rules? Everything. What do you want me to do? So, you basically follow them like a responsible citizen, right? So, recently the case that had happened about, as that female, she killed 2 people. So, what is your take on that? Straight away in jail, for at least 5 to 10 years, and she should pay for the person who died. You see, in other places, what they say, suppose you're 6 years old or 10 years old, you're qualified. Till you're 60, how much you would have earned? That money she has to pay. You can't get away with this. Yeah. And let me tell you one thing, she's gone. What about the wife and the kid? What about the children? Who's taking? Actually, we are so dishonest. We think it's not our problem. It is very wrong. It's hurting. See, I'm a senior citizen. We have gone through this. We also drive. But you can't drink and drive. You should be punished. Okay, if it's an accident, I understand. Alistair was the first guy. Yes. Why should I just? Why should you leave him there? If you're going to be another thing, if you don't have stringent punishment, this is only going to increase. So you feel that government is not taking appropriate measures? Of course, there's no question about it. And another thing is, let me tell you one thing. You must have passion when you do something. These guys only believe in money, passing the buck to somebody else. When are we going to stop? It's your age to make the change. In fact, I tell my daughter, she's done an MBA and she's now started working. I said, you all should make the change and do it without fear. See, what I tell now, I've got a lot of cases in PMC, but they're corrupt. I'm fighting like anything. I broke 20 illegal garages in our place. Still fighting. That's so nice, sir. And then I went to the RTI. I've got all the papers which my point is, when are we going to change? For example, if a person crosses the track, he's put in jail for 7 days. Okay? If a person drinks, he put 1 or 2 days. If he kills a person, why are you leaving there? You can't say that I was drunk, therefore I killed. And they say that this is not amounting to murder, an accident. How do you say that? When you drink, don't you know that you can't control yourself? I know I'm too long. So and what do you feel that, what is the message? Like generally people who drink and drive, they just give away money and they go. So what do you feel that, what is your take? What is the solution for it? You go overseas. They always keep one guy without a drink. I also drink. But if I'm coming home, I always ensure that I've got a person to drive me home. Or I stay at that place. Knowing fully well, I can kill or hurt somebody in that place. I think we must also have. What if it's your child? I remember reading an article on Malwa Hill where a person went and hit a girl, passing her, and she's maimed for life. Damn it, you got away with it. What about that girl? Y'all are the ones, I'm not joking, y'all are the ones who should really get that. And these old fellows who are ruling our government, 55 should be the retirement age. Forget, and we'll be having the youngest population in the world, my friend. What are we going to do with it? I'm depending on you all. Yes, definitely. If I'm upstairs also, I look up to you all. Don't worry. Thank you, sir. Okay. Thank you so much. This is the opinion of today's people, saying that capital punishment could be the answer or it's preventive measures by us. What do we do as responsible citizens? Let's take a look. आप ट्रैफिक रूल्स के बारे में कितना जानते हैं? जितना सबको पता होना चाहिए उतना बराबर से जानते हैं कि किसी को अगर इमरजेंसी रहे तो रूल्स को फॉलो नहीं भी करे तो चलेगा। तो आपके हिसाब से रूल्स अगर तोड़े भी जाए तो ऐसा जरूरी नहीं कि रूल्स तोड़े जाए। तो रूल्स मिनिमम जैसे अगर किसी को ज़्यादा इमरजेंसी या किसी के काम से कुछ लेट हो रहा है तब ब्रेक करे तो भी चलता है। ऐसा थोड़ी तो सभी पब्लिक फिर सिग्नल ब्रेक करके जाएगी तो ट्रैफिक जैम हो जाएगी। तो वही ना, तो कोई हर कोई बोलेगा मुझे इमरजेंसी है जाना है, तो फिर ऐसे में क्या करें? ऐसा थोड़ी अपने जैसे नॉर्मल लोग नहीं जा सकते ना, डॉक्टर हो गए, पुलिस हो गए या कोई स्पेशल ऑफिसर्स हो गए। आपने कितनी बार सिग्नल तोड़ा है? आपने तोड़ा है सिग्नल? मैं तो डेली तोड़ता हूँ सिग्नल ब्रेक करके। आप सिग्नल ब्रेक करके आए तो येलो हो गया था बट निकल गया क्योंकि मेरे को इमरजेंसी। तो आपको क्या लगता है कि क्या जरूरी, आपको नहीं लगता है कि पुलिस वालों को और स्ट्रिक्ट होना चाहिए इसके बारे में? इतना तो स्ट्रिक्ट है, एक मिरर नहीं है तो उसके ऊपर भी फाइन है। ऐसे कह रहा है। तो क्या आपको लगता है कि वो रिश्वत लेना जो वो करते हैं, रिश्वत लेना ही है क्योंकि हम लोगों को बोलते हैं कि ऐसा शो करके पैसे मत दो बुक के अंदर, तो वहाँ उसका मिरर का 100 रुपीज़ फाइन है। तो हम लोग 30, 40, 50 कुछ भी बुक में छुपा देते तो ले लेते। तो आपने अब
तक कितनी रिश्वत दी? बहुत सारी। और आपको नहीं लगता है कि ये सही है? इसके अगेंस्ट क्या करना चाहिए आपके हिसाब से? अगेंस्ट क्या, अगर 100 रुपीज चार्ज मारेगा तो जितना अपनी पेमेंट नहीं उतना तो आधा उसी में चलेगा। हम लोग को भी जम जाता, चलो 100 की जगह 30 जा रहा तो ठीक, 30 दे दो। तो रिसेंटली आपको पता है केस हुआ था, एक लड़की ने एक्सीडेंट कर दिया था और एक पुलिस वाला और एक और जन मारा गया है। तो आपको नहीं लगता कि ये जो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव, लोगों को पीना नहीं चाहिए, पीकर नहीं चलाना चाहिए, तो रूल्स के खिलाफ है, पीकर नहीं चलाना। तो आपने वो टेस्ट किया है जो होता है? ओके, हाँ, वो मेरे को बहुत जगह नाकाबंदी में पकड़ के फूकने बोले, हाँ, तो पाइप वगैरह में। हाँ, बट मैं ड्रिंक ही नहीं करता तो आप एस्केप हो गए। तो लेकिन आपको लगता है कि अगर वहाँ पे भी पकड़े गए होंगे लोग तो लोगों ने रिश्वत ली होगी, पुलिस वालों ने रिश्वत ली होगी? ऐसे आपके कोई दोस्त पकड़े गए हैं? ऐसे तो मेरा कोई दोस्त स्मोकर या ड्रिंकर नहीं है, बट ऐसे केसेस हुए कि उन लोगों को थोड़ा बहुत रिश्वत देके। तो आपको लगता है कि पुलिस वालों को और सख्ती से पेश आना चाहिए? हाँ, लेकिन ऐसा भी नहीं कि एक अगर दिन भी आगे मिस हो जाता है, जैसे गाड़ी का इंश्योरेंस आज खत्म हो गया 2 फेब को, तो 3 फेब को भी पकड़ ले तो 600 रुपये नहीं भरो तो लाइसेंस जमा करो। और फिर हम लोग तो लाइसेंस जमा नहीं कर सकते, डेली बाइक पे अप डाउन है, तो उसके लिए फिर हम लोग को चार्ज भरना पड़ता है। तो वो भी हम लोग 50, 40, 60, 100 जो भी मैक्स टू मैक्स हाथ में देके निकल जाता है, क्योंकि इतना टाइम नहीं हमारे पास कि हम जाके चौकी में लाइसेंस छोड़ा। अभी तो फिलहाल मेरा यहाँ पे बॉस का डैन रेस्टोरेंट ओपन हुआ, उसके लिए जा रहा हूँ मैं। तो आप रेगुलर अप डाउन करते हैं? नहीं, रेगुलर मेरा मुमरा टू। तो आप ट्रैफिक के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कितना सारा ट्रैफिक है? वेस्टर्न लाइन में तो बहुत है, सेंट्रल में इससे थोड़ा कम है। तो आप यही कहना चाहते हैं कि अगर कोई ड्रिंक एंड ड्राइव करता है तो आपको क्या लगता है उसकी क्या सजा होनी चाहिए? लोगों पे फाइन मारना चाहिए, बस उनको फाइन मार के फाइन मारना चाहिए। एटलीस्ट उन लोग को 1 से 2 दिन तक लॉकअप में रखना चाहिए कि दोबारा आइंदा ऐसी गलती नहीं करें, क्योंकि उन लोगों की वजह से बहुत सी मासूमियों का एक्सीडेंट वगैरह होता है, जो भी है बहुत सारे केसेस होते हैं। तो इसीलिए ड्रिंक एंड ड्राइव करना अच्छा है। नया पनिशमेंट बताइए, गवर्नमेंट का कुछ नया जो किया है ड्रिंक एंड ड्राइव? हाँ, अभी नया इशू किया है अभी कि एक बाइक पे अगर हेलमेट है तो पीछे वाला अगर बैठा तो उसको भी हेलमेट चाहिए। अभी परसों की पावती थी मेरे पास, आज ही जस्ट मैंने डस्टबिन में डाली, 100 रुपीज़ उसके लिए भी फाइन। फ्रेंड बैठा था मेरा तो चेंबूर चेक नाके पे मेरे को पकड़े और उधर पे बोले कि डबल सीट वाले को भी हेलमेट कंपलसरी है, और ऐसा रूल्स में नहीं है। ऐसा रूल्स में नहीं, अभी तक नहीं है। जो डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव जो ड्राइव पी के चलाते हैं उनके लिए कैसे आपको 5,000 से 10,000 कर देंगे? तो आपको लगता है बोलते हैं, लेकिन 400-500 दे के निकल जाते हैं। यही कहना चाहते हैं? तो यही कह रहे हैं आजकल के लोग कि कम पैसे देकर भी हम छूट सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में। I'm standing behind Link Road where there is a lot of traffic. 24/7, Mumbai is always stuck in traffic. It's a night time where we already obviously require a Havaldar who sees to it that nobody breaks rules. If this is what the responsibility is, what about the measures taken by the government to take tests? Cameraman Sonal Jadhav, Leena Bhatia, Headlines Today.